Hello everyone. We are starting a new topic, that is reissue of share. Reissue of share means the shares what we have forfeited. Till now you have learned how to forfeit the share. Forfeit means cancellation of the share. So whatever shares we have forfeited, that shares now they are going to sell again. Again the company will be going to sell that shares. So when that shares are going to sell, that is called reissue of share. Meaning, anybody repeat please, what do you mean by reissue of share? We reissue the forfeited shares. Means we are reselling the forfeited shares. So that is called reissue of share. So reissue means again the money will be going to come to us. Again आपके पास पैसे आएंगे. So question number 54. 54 question. Krishna Limited issued 15,000 shares at the rate of 100 each प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 110 रुपीज़. जो आप पे कैसे करने वाले हो? 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट which includes premium. So premium is of 10 rupees. So premium will be coming, and 40 is on capital. Then first and final call 30. This much question as you are doing same they had given. Now new what they are saying, all these shares were fully subscribed and all these shares were fully subscribed and company received all the money due with the exception of 150 shares. 150 shares have not paid the allotment money and not paid the call money. These shares forfeited and reissue at 120 fully paid up. क्वेश्चन बताओ कितना आप कर सकते हो? गिव दी जर्नल एंट्रीज दे हैव आस्क्ड. तो देखो मैं आपको समझा रही हूँ पूरा क्वेश्चन कहाँ से चेंजेस होंगी आपको समझना है. सबसे पहले देखो आपके शेयर्स कितने इशू हैं? 15,000. और 15,000 शेयर्स एप्लीकेशन सबने दी है. Application money was given by everyone. So simple, what entry we are passing, same entry we have to write. So what will be the entry? Bank to share application, 15,000 into 30, 4,50,000, 4,50,000. Second entry will be share application to share capital, 15,000 into 30, 4,50,000, 4,50,000. These two entries having any doubt? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ थर्ड एंट्री क्या करते हैं? ड्यू की एंट्री. तो ड्यू की एंट्री हम क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR, जिसमें बताओ कितना लिखेंगे? 15 5 75. कैपिटल में कितना आ जाएगा? 15 4 60. और यहाँ बोलिए इस एंट्री में भी किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Then what will be our next entry? Next entry हमारी क्या होती है? बैंक कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में यही हम 750 लिख देंगे. कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? 150 लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं. तो कॉल इन एरियर कितने का खुल जाएगा? 7500 का.
अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो आपका कितना आ जाएगा 7,42,500। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? सिंपल सम। Yes, ma'am. Then next what we are doing? Yes, ma'am. फाइनल कॉल ड्यू एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल and it will be 15 threes are again 4,50,4,50। फाइनल कॉल में फिर कॉल इन एरियर हो गया है, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो वी विल ओपन कितने का कॉल इन एरियर खुलेगा बताओ? 150 इंटू 3 4,500। और अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ हु विल टेल मी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? Share capital account debit यस to share forfeited यस टू to call in and यस गुड। शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? बताओ शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? जितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं उनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीमियम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? no, ma'am. Yes, ma'am. Premium not paid, it will be Yes, going ma'am. to open. Share capital account debit, security premium reserve account debit to call in arrear to forfeiture. Share capital में 150 into 100, प्रीमियम जितने का नहीं दिया, कॉल इन एरियर टोटल 50 और 30 80 नहीं दिए, बचा हुआ फोरफीचर में आ गया 30। अब बताओ किसको इसमें डाउट है? बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है? We have learned yesterday class also that share capital जितने shares they are not giving, that shares will be multiplied by the money what we have called a security premium reserve, that how much they had not paid premium, call in area total money how much they had not paid, and forfeited share। अब बताइए इतने में किसी को कोई डाउट है? This much is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now today we have to pass new journal entry reissue. Reissue की journal entry क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक टू शेयर कैपिटल। देखो बोला है रीइशू एट 120 में आपके शेयर्स बिके हैं, तो यहाँ बैंक में कितना आ जाएगा? 150 इंटू 120 18,000 आ जाएगा। जबकि फुली पेड अप मतलब जितने का शेयर है उतना आपको बोला गया है, तो 150 इंटू 100 यहाँ। यस बेटा। I'm in bank. I'm why we multiply it by 150. 120, read the sentence in question. They had said that these shares were reissued at 120 fully paid up, means these shares were sold out for 120 rupees. तो 150 shares into 120 that means 18,000 में ये shares sold out हुए हैं।
आया समझ में? इज इट? Yes, ma'am. नाउ डिफरेंस देखो कहाँ बच रहा है, नीचे. Credit side. So if credit side is left, so we have to write that balance by security premium reserve. तो ये हमारी रीइशू की एंट्री हो गई. बताओ किस किस को रीइशू की एंट्री समझ में आ गई है? अगर ये बैलेंस डेबिट में बचता तो हम किस नाम से लिखते? शेयर फोरफीचर के नाम से लिखते. किस नाम से लिखा जाता? Forfeiture. और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो किस नाम से लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल. इफ बैलेंस इज लेफ्ट डेबिट साइड, सो इट विल बी राइटिंग by the name of forfeiture, and if balance is left on the credit side, so it will be write by the name of security premium reserve. So now this much is clear. Yes, ma'am. After that we have to pass. ये वाला forfeiture जो है फर्म का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने उनसे छीन लिया था. तो ये प्रॉफिट्स जो होते हैं, उन प्रॉफिट्स को कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बांट देती है. अगर यहाँ पे हम फोरफीचर खोलते तो हमारा लॉस होता. ना हम प्रॉफिट को लॉस में से माइनस करके आखिरी एंट्री बनाते हैं, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. क्या एंट्री बनाते हैं? शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. तो ये हमारा प्रॉफिट है. अगर यहाँ पे खुलता तो वो लॉस होता, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके यहाँ भेज देते. बट अभी तो ओपन हुआ ही नहीं है, तो वही का वही पूरा प्रॉफिट हम कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में. सो आवर लास्ट एंट्री विल बी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. नाउ इट्स क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रीइशू इज 50 shares of 10 each. 50 shares of 10 each were forfeited for non-payment of final call. उन्हें दिया. Yes बेटा. Ma'am, code is blur. Ma'am, little bit. These shares were reissued at 9, fully paid up. See now, हमें यहाँ पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ बस सीधे फोरफीचर की एंट्री करनी है. इनने कहा है 50 शेयर्स जो 10 रुपये का एक शेयर है, फाइनल कॉल 3 रुपये की उनने नहीं दी. ठीक है, तो बताओ फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरियर टू फोरफीचर, यही होगी ना? शेयर कैपिटल में कितना लिख लेंगे? 50 into 10, दैट मीन्स 500. 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो जो पैसे नहीं दिए उसको हम किस में लिखेंगे? Yes. So 50 into 3 will be coming here. अब इसमें से इसको माइनस करो, जो बचा ये बैलेंसिंग फिगर हो गया. बोलो इस एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. अब ये शेयर्स रीइशू हुए हैं. रीइशू हुए हैं तो रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल. ये शेयर्स रीइशू हुए हैं 9 में, तो 50 into 9 बैंक में आ जाएगा. फुली पेड अप बोला है, मतलब यहाँ हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 500. अब इसमें से इसको माइनस करो, बैलेंस कहाँ बच रहा है? ऊपर. तो डेबिट में बैलेंस बचता है तो किस नाम से लिखते हैं?
4 फीचर के नाम से, शेयर 4 फीचर। अब ये आपको 350 का प्रॉफिट है, 50 का लॉस हो गया, तो कितना प्रॉफिट अभी भी बचा आपके पास? 300. So 300 will be going to come here. Now tell me it's clear. Second entry, bank to share capital we have to write. They have said reissue at 9, मतलब 9 रुपए में बिके, तो जितने में बिकेंगे वो हम बैंक में लिख देंगे, तो 50 into 9 we have written in bank. Fully paid up means share capital में we have to write face value, तो 50 into 10. Now balance is on the debit side, so if balance is on the debit side we have to write it by share 4 feature, and if balance is on credit side we have to write by security premium reserve. Clear now? Yes, ma'am. So now new question. Entry will remain as usual. Entry will not be going to change. So we are writing entry. Same entries I had written. So 30 shares. 30 shares of 100 each. Issued at premium means it will be 120. Payable with allotment. Share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment. तो वो कह रहे हैं अलॉटमेंट आपकी है 50 रुपीज़ की, जिसमें प्रीमियम 20 का मिक्स है, इनने ये नहीं दिया। फाइनल कॉल जो है 40 रुपीज़ की, फाइनल कॉल जो है 40 रुपीज़ की कॉल्ड ही नहीं करी, नॉट मेड। नॉट मेड मीन्स मांगी ही नहीं। फाइनल कॉल आपकी 40 रुपीज़ की है, तो बताओ एप्लीकेशन कितने की होगी? एक शेयर 120 का है, अलॉटमेंट की वैल्यू आपको बता दी, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 50, फाइनल कॉल की बता दी 40, तो बताओ एप्लीकेशन की कितनी होगी? 30। यस, गुड। ओके, पहले ये स्टेप समझ में आया। The forfeited shares were reissued at 140 fully paid up. तो ये शेयर्स 140 में रीइशू हुए हैं fully paid up. बन जाएगा? How many were able to do this question? पहली एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम भी नहीं दिया है तो प्रीमियम डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू फोर फीचर। अमाउंट बताइए कितना कितना अमाउंट किस में आएगा? देखो 100 का एक शेयर है, उसमें से 40 रुपीज़ आपने अभी कॉल्ड अप ही नहीं करे, मांगे ही नहीं है, तो आपने कितने मांगे? बताओ कितना कॉल्ड अप किया? 60। सो शेयर कैपिटल इट विल बी कमिंग 60। 30 शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, 60 कॉल्ड अप हैं, जितने अभी आपने मांगे, तो इट विल कम हियर। प्रीमियम कितने का है जो उसने नहीं दिया? 60 रुपीज़, 600 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं दिया। टोटल कॉल इन एरियर बताओ कितने का है, कितने रुपए उसने नहीं दिए? अलॉटमेंट नहीं दी ना, क्वेश्चन में कहा है ही इज अनएबल टू पे अलॉटमेंट, नॉट पेएबल बोला है, तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? 50। सो इट विल बी 1500। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 900।
बोलिए इस एंट्री में किस किस को कंफ्यूजन है अभी भी? फर्स्ट आपको देखना है प्रीमियम दिया है कि नहीं. ही हैड नॉट पेड प्रीमियम, तो हमने प्रीमियम भी लिखा है. तो हमारी एंट्री हो रही है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉलन एरियर टू फोरफीचर. शेयर कैपिटल में हम वही वैल्यू बोलते हैं जितनी अभी तक आपने मांगी है. तो आपने कितनी मांगी है? आपने क्वेश्चन में कह दिया है फाइनल कॉल नॉट मेड, मतलब फाइनल कॉल तो अभी मांगी ही नहीं है. तो 100 में से 40 हटा लो तो आपने कितना कॉल्ड अप करा है? 60. तो हमने शेयर कैपिटल में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. प्रीमियम उसने कितने का नहीं दिया है? 20 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं दिया है, तो प्रीमियम 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. कॉल इन एरियर जो उसने दिया ही नहीं है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट उसने अलॉटमेंट 50 रुपीज़ नहीं दिए हैं, इसलिए अलॉटमेंट में 50 से मल्टीप्लाई कर दिया. फोर फीचर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया. अब बताओ डाउट है? बोलिए, स्टिल हैविंग कंफ्यूजन? नो मैम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एंट्री व्हाट विल बी? बैंक शेयर कैपिटल 140 में री इशू हुआ है, तो बताओ बैंक में कितना जाएगा? These shares were sold at 140 fully paid up, तो बैंक में कितना जाएगा? $140 कितना जाएगा? फुली पेड अप बोला है तो हमें यहाँ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ आ जा रहा है आपका बैलेंस. कहाँ बच रहा है? क्रेडिट में. तो क्या नाम लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. क्या लिखेंगे? आखिरी एंट्री हमारी क्या होती है? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. अब इस फोर फीचर को यहाँ के फोर फीचर से माइनस करना है, तो वो तो है ही नहीं, तो 0 मानकर यही का यही यहाँ भेज देंगे. अब बताइए आया समझ में कि नहीं आया? सी, यहाँ आपकी एंट्री चेंज हो जाएगी. SPR नहीं खुलने वाला. आपको कहा है 50% शेयर्स री इशू हुए हैं. कितने शेयर्स री इशू हुए हैं? 50%. 50% का मतलब क्या होता है? आधे शेयर्स री इशू हुए हैं. मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू लिखी थी? ये लिखा था पहला. अब आपको कहा है 50% शेयर्स री इशू हुए हैं, मतलब 200 फोरफीट थे, तो इसका आधा निकालो, मतलब 100 शेयर्स री इशू हुए हैं. तो 100 शेयर्स जो री इशू हुए हैं 8 में, तो 8 में मतलब यहाँ आ जाएगा 800. फुली पेड अप बोला है तो एक शेयर कितने का है? 10. तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1000. डिफरेंस कितना बचा? 200. कहाँ लिखेंगे? किस नाम से लिखेंगे? शेयर फीचर डेबिट. क्या आएगा? अब यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट समझो. अभी आपने जितने भी सम करे, अगर आपने 200 शेयर फोरफीट करे थे तो 200 ही री इशू करे थे. यही किया था ना?
सो नाउ लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोरफीचर हम सीधे इससे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉफिट 200 शेयर्स का है और ये लॉस 100 लोगों का है, 100 शेयर्स का है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फोरफीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय फोरफीटेड शेयर इनटू रीइश्यू शेयर। इससे जो अमाउंट आएगा उसमें से आपको फोरफीचर डेबिट माइनस कर दोगे, जो बचेगा उसको आप कैपिटल रिजर्व में भेज दोगे। तो आप देखो कैसे अप्लाई कर रहे हो। फोरफीचर अमाउंट कितना है 1000, फोरफीटेड शेयर कितने हैं 200, रीइश्यू शेयर कितने हैं 100। तो इससे आपका कितना आ गया 500। इस 500 में से हमें ये डेबिट वाला फोरफीचर माइनस करना है, बचा कितना 300। तो हम कैपिटल रिजर्व में कितना भेजेंगे 300। एक बार फिर से सुन लीजिए सब, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली एंट्री फोरफीचर की सबको आ गई है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एंट्री लिखते बन गई है, अमाउंट में प्रॉब्लम आई है। तो अमाउंट में प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि उनने क्वेश्चन में कहा है 50% शेयर्स वर री इशूड एट 8। तो 50% मीन्स जितने आपने फोरफीट करे थे उनके आधे शेयर्स री इशू हुए हैं। तो हमने 200 का आधा किया 100, अब वो सोल्ड कितने में हुए हैं 8 में। तो 100 into 8 वी हैव डन। शेयर कैपिटल वी हैव रिटन फुली पेड अप, सो 100 into 10 balance is left on debit side, so it will be written by the name of share forfeiture। अभी हमने इससे पहले आपको समझाया था फोरफीचर क्रेडिट से फोरफीचर डेबिट माइनस कर देते हैं, जो बचता है लास्ट एंट्री में लिख देते हैं। बट उन सम्स में हमारी सिचुएशन थी कि हमने अगर फोरफीट करे 200 तो हमने रीइशू भी कितने करे थे 200। बट अब यहाँ ये कंडीशन दे दी कि आपने फोरफीट ज़्यादा करें और रीइशू आपने कम करें। तो जब भी आपने फोरफीट ज़्यादा किया हो और रीइशू कम करा हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आपकी कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी, जो आप लास्ट एंट्री में लिख दोगे। अब आया समझ में? Keep studying.